सरदार वल्लभ भाई पटेल और हमारे देश के यशस्वी ज्योति ही परम ज्योति दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख समृद्धि परम द्वेष बुद्धि विनाशाय जन आत्मज्योति नमोस्तु मे आत्मज्योति प्रज्योताय नमो ब्रह्मज्योति शुभं करोतु कल्याणं ज्योति प्रदीप्ताय सुख समृद्धि परम ज्योति विनाशाय
महोदय श्रीमान भूपेंद्र पटेल जी का स्वागत सम्मान हो रहा है। का हम अतिथि देवो भव के इतिहास में चौथी बार स्वागत सम्मान करेंगे। गुजरात में दैट इज वेलकम ऑल आवर डिग्निटरीज वार्षिक अधिवेशन का आयोजन। आई रिक्वेस्ट श्री एस.बी. वसावा प्रेसिडेंट आईआरसी टू वेलकम श्री नितिन गडकरी जी और सभी अतिथियों का भी स्वागत करेंगे। हाईवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मंच पर उपस्थित है श्री राजकुमार सर, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। शॉल एंड इसके साथ मंच पर विराजमान भी हम स्वागत करते हैं। श्री एस.बी. वसावा प्रेसिडेंट आईआरसी, श्री एस.बी. वसावा प्रेसिडेंट आईआरसी, श्री संजय कुमार निर्मल सेक्रेटरी जनरल आईआरसी, आप सभी अतिथियों का हम सम्मान के साथ स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आमंत्रित करते हैं श्री ए.के. पटेल, सेक्रेटरी आर.एन.बी. डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड चेयरमैन स्टेट स्टीयरिंग कमेटी फॉर हिज वेलकम एड्रेस। Namaskar and warm welcome to 82nd annual session of the Indian Road Congress here in the vibrant city of Gandhinagar of Gujarat state. It is indeed an honor to stand before you today and address this gathering of professionals and who play a pivotal role in shaping the infrastructure landscape of our great nation. I myself, Ashok K. Patel, Secretary Roads and Building Department on behalf of Government of Gujarat, welcome Honorable Chief Guest Sri Nitin Gadkari ji, Honorary Union Minister of Road Transport and Highway Government of India to this annual session. I also welcome dignitaries on the dais, Sri Bhupendra Bhai Patel, Honorary Chief Minister of the State of Gujarat, Sri Raj Kumar, Chief Secretary of the State of the Gujarat, Sri S.B. Wasawa, President IRC and Housing Commissioner, Gujarat Housing Board, Sri Sanjay Kumar Nirmal, Secretary General IRC, Sri C.P. Joshi, Past President IRC, Professor Manoranjan Parida, Vice President IRC, Sri Arvind Kumar Jain, Vice President IRC, Sri R.K. Mehra, Vice President IRC, Sri Pranam Kapoor, Vice President IRC, and Sri J. Gandhi, Local Organized Secretary of the Session and Chief Engineer of the R&B Department, Government of Gujarat. At the outset, we are graced to host this IRC annual session, fourth time after 19 years in the presence of such a massive technical brain at the Mahatma Mandir. Earlier, 34th, 50th and 64th sessions were hosted by the Gujarat. The session is not limited to IRC members only, but provides platform to road engineers and transport professionals too. IRC introduced Indian Road Congress in apex technical organization of the country who plays very important role in the upgradation of highways, which doesn't require any introduction, comprises of 3 technical committees, that is highway, bridge and general specification and standards. The committees prepare, upgrade and publishes the technical guidelines and standard from time to time. Roads and Building Department, Government of Gujarat being a host of this
session, I would like to inform the august gathering of eminent engineers of the country and guests at the function that government has introduced many schemes and projects to improve the roads and bridge infrastructure of the state, to enhance economy of the state as well as social upliftment of the people of the state. For the improvement and strengthening of state highways, projects that are introduced such as Pragati Path, which provides connectivity to east-west and south-north region of the state. Vikas Path, that is the improvement of road section of the urban areas. Pravasi Path, which are upgradation sections of the road leading towards the tourist places of the state. And add to further that, MMGSY, that is Mukhyamantri Gram Sadak Yojana, is the flagship project of the state to upgrade the connectivity and enhance the connectivity of rural area of the state. And till date, more than rupees 25,000 crore have been invested on this scheme. And from this scheme, more than 17,000 kilometers roads have been blacktopped, and more than 2,000 cross-drainage structure, including major and minor bridges, have been constructed so far. Government has also taken various steps to improve the connectivity of tribal areas of the state, and very sensitive and sensible to upgrade the road and bridge infrastructure in this tribal area, of which population is about nearly 15% of the state's total population. Roads and Building Department of the Government of Gujarat has been keeping provisions of more than 14.5% of its total budget of the department. Same way, areas of the state comprising major populations of scheduled caste are also being taken care of, and the provision of 7.5% minimum is kept in the budget of the department. With a view to upgradation of road and bridge infrastructure in the state towards all the sector, that is industrial, social, tourism, etc., Roads and Building Department has taken various steps every year and increase in budget every year. That is, since it was rupees 537 crores in 2001 to 20,462 crores in 2023-24. That is 40 times increase in the budget. As IRC is kind enough to permit state as host of this 82nd annual session in Gujarat, our engineers will benefit in their knowledge, upgradation in latest techniques and information in roads and bridge sector. For that reason, state is thankful to the IRC. Again, I am welcoming to all the delegates and guests to this session and in the state of Gujarat, and hope enjoy their stay in the state. If any inconvenience in case, then kindly bear with us, and we will take care for the same in the future. Again, thank you very much for coming here, and again I am welcome to the delegates and guests to this annual session. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your welcome address. And now I would like to invite Shri S.K. Nirmal, Secretary General IRC, for his address. Good afternoon. Honorable Union Minister for Road Transport and Highways, Sri Nitin Gadkari ji, Honorable Chief Minister of Gujarat, Sri Bhupendra Bhai Patel ji, Chief Secretary, Government of Gujarat, Sri Rajkumar ji, President IRC, Sri Wasawa ji, Past President, Sri Joshi ji, Vice President IRC, Sri Dr. Parida, Sri Mehra ji, Sri Arvind Kumar ji, Sri Pravan Kapoor ji, Local Organizing Secretary and Chief Engineer, Sri Gandhi ji, delegates and invitees, ladies and gentlemen. It is a matter of great honor and proud privilege for me to welcome you all on the occasion of inauguration of this 82nd annual session of IRC. On behalf of IRC fraternity, I feel honored to welcome Honorable Union Minister of Road Transport and Highways, Sri Nitin Gadkari ji, for sparing his valuable time to be with us today for his blessings in spite of his very busy schedule. I am also very grateful to Honorable Chief Minister of Gujarat, Sri Bhupendra Bhai Patel ji, for his consent for hosting this session in Gujarat and his gracious presence
in spite of other pressing engagements. I also welcome Chief Secretary Gujarat and all the dignitaries on the dais and off the dais for gracing this inaugural function. Sir, the Indian Road Congress is the apex body of highway engineers and professionals, which was set up 89 years back, that is 1934 it was set up, and it was registered as a society in 1937 before independence. And today we are having more than 19,000 members. That is maybe one of the largest professional body of highway engineers in the world. The main objective of IRC is to set up and formulate standards, codes, specifications, manuals related to road, bridges and road transport for adoption by central and state government road agencies to construct and maintain sustainable road infrastructure for overall development of the country. And in fact, sir, these our codes are also being used in our adjoining countries and African countries. That is the kind of feedback we received from World Bank and multilateral agencies. In order to pool the latest knowledge from the experts within the country and abroad, and to disseminate the information, we are conducting annual sessions, council meetings, and other workshops. And so far, we have conducted 81 annual sessions, 225 council meetings, and more than 40 international and national seminars in various parts of the country. IRC had the privilege of holding annual session in Gujarat itself earlier three times in 1972, 89, and 2004. Sir, IRC has prepared so far about 275 standards and codes. And I'm happy to inform you that during the last 6 years alone, we have prepared about 100 of these codes. So we are keeping at par with the international best practices, and our codes are at par with the latest in the world. So today, during the inaugural function itself, we are going to have 6 new and 2 revised publications released through Honorable Minister. And these are very, very important for the highway sector, which will be released today. One is on the guideline for financial analysis of road projects, because there are a lot of BOT projects and there is no existing guideline. So that will be released today. Then one very important document is guideline for highway engineers on disaster resilient green infrastructure for multi-hazard ecosystem. So this is also a very important document which we have shared with the NDMA also, and this is a need of the hour. Then Hill Road Manual of 1998 also has been revised, and today we are going to release the revised manual. Specification for stone matrix asphalt for high volume roads also is very important document, and this is revised document will be released today. Guideline for design, construction, maintenance of cable stayed bridges. Now number of cable stayed bridges and extra dose bridges are being constructed in India and abroad, and there are very few guidelines available internationally. So today we are going to release the Indian guideline on cable stayed bridges as well as extra dose bridges. Then one important for road safety issue, manual for speed violation detection system. This also will be released today. And one important document on the high performance, because bituminous roads are failing, and that is what we are observing. So for high traffic corridors, we have finalized guideline on high performance bituminous mixes for high volume roads, which will be released today, sir. So these are the guidelines which will be released. And then in addition to that, yesterday, sir, in the council meeting, throughout the day, right from 10 a.m. in the morning till 8 p.m. in the evening, for 10 hours, we deliberated on 7 important documents and we approved them. That is revision of IRC 5, that is specification for road bridges, general feature design. Then a new code for design, construction, maintenance of arch bridges, which are already there, but there was no guideline. So this is the guideline yesterday we have approved. Then new guideline for detailing of steel bridges. That also has been approved yesterday. Then IRC 40 revision, that is standard specification on masonry, brick, stone and cement concrete block masonry. This also has been approved. Then manual for bridge inventory inspection, maintenance and management. That has also been updated. IRC SP 53 guideline on use of modified bitumen also has been revised, and that has been approved. And a new document on guideline for red light violation detection system. So these 7 documents have been yesterday approved, and that will be printed and released in the next annual session. So during this 4-day annual session, which we are planning from yesterday we have started from yesterday and to 5th of this month. So today we are also having a meeting of secretaries come engineer-in-chief under the chairmanship of Secretary Ministry of Road Transport and Highways. So this is a very important meeting which will be conducted, and to Secretary Saab we could not come physically,
but it will be online. He will be taking this meeting from Delhi. Then apart from that, there are 17 technical sessions specifically dedicated to students, research scholars, professors, academicians from IITs, NITs, then scientists from R&D organizations, contractor, consultant, NGOs, private sectors, these stakeholders. Then we have session for international experts from multinational agencies like JICA, World Bank, officers from various state PWDs, PSUs, there are sessions. Then there is a session for central government road departments. Then there are sessions for research organizations also. We have a session, NATPAC, HRS, CRRI, COIR board, they're all attending this session. And I'm sure that all these sessions will enlighten the highway fraternity and for imparting knowledge and bringing out best engineering practice in the road sector. In the end, I wish to once again thank our Honorable Union Minister, who has been always blessing us in IRC in various sessions. And I am also grateful for Honorable Chief Minister of Gujarat for gracing this annual function. I also thank all the delegates who have come from all over India and abroad to participate in this session. And their deliberation will definitely benefit not only IRC in the framing of codes and policies guidelines, but to all other attending this session. I would also appreciate the painstaking effort of the organizing of this annual session and for their excellent hospitality by the State R&B Department headed by local organizing secretary Sri Gandhiji and his entire team. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, sir, for sharing such informations with all of us. And now I would like to invite Shri S.B. Vasava, President IRC, who has been continuously taking much efforts to make this event a grand success, for his address. Honorable Union Minister for Road Transport and Highways, Sri Nitin Gadkari Sahab, Honorable Chief Minister of Gujarat, Sri Bhupendra Bhai Patel Sahab, Chief Secretary, Government of Gujarat, Sri Rajkumar Sahab, Secretary General IRC, Sri S.K. Nirmal, Secretary Roads and Building Department, Sri A.K. Patel, past President of IRC, Sri C.P. Joshi, Vice Presidents of IRC, Dr. Parida, Mehraji, Arvind Kumar Jainji and Pranav Kapoorji, Chief Engineer of Government of Gujarat and Local Organizing Secretary Sri Jay Gandhiji, distinguished delegates and invitees, press and media, ladies and gentlemen, it is a matter of great honor and privilege for me to welcome you on all occasion of the inauguration of 82nd annual session of IRC on behalf of IRC fraternity. I feel honored to welcome Honorable Union Minister for Road Transport and Highway, Sri Nitin Gadkari ji, for sparing his time with us today in spite of his very busy schedule. I am also indebted to Honorable Chief Minister of Gujarat, Sri Bhupendra Bhai Patel Sahab, for his gracious presence in spite of his pressing engagement and continuous traveling in last week. I also welcome dignitaries on the dais and off the dais for gracing this inaugural session. On behalf of Indian Road Congress, I express my sincere gratitude to Government of Gujarat for inviting IRC to hold this annual session. This is, as told by Sri Nirmalji, it is the fourth time we are enjoying hospitality of Gujarat state. Sir, during 89 years of journey of Indian Road Congress since 1934, IRC has supported the programs, policies and endeavors of Government of India as well as of a state government. Indian Road Congress fraternity has risen upon a time and again to the demand posed by the road sector, ranging from rural roads to state highway, national highways to urban road and expressways and green highways. Importance of road infrastructure is widely recognized as a potent means of socio-economic integration and is a vital for economic development of a country. India has the second largest road network in the entire world and it's around 63.70 lakh kilometers. During the past decades, large investment has gone into the road sector. Average expenditure
has increased from level of 8,000 crore per year during 1997 to 2002 to rupees 1,60,000 crore per year during the year 2012-2017. During period between 2014-15 and 21-22, ministry and its implementing agencies have spent around rupees 10.5 lakh crore cumulative expenditure as a capital expenditure. Data shows that the last 5 years there has been a significant growth in the road network. Further, the government has identified the importance of a economic corridor as they are going to play an enabling role in transforming India's economy to the USD $5 trillion. Importance of the sector is also can be seen from the fact that it accounts for the 18.5% of projects of the national infrastructure pipelines. Sir, the Ministry of Road Transport of Highways and other road department carried forward with their mission to build a good quality of highways. There has been a consistent increase in the construction of national highways and other roads since 2013-14. With a 13,327 kilometer of road constructed in 2020-21 as compared to 10,000 in year 1920. That indicates 30% more vis-a-vis a year. Sir, another important and most challenging aspect of highway engineering is a designing to enhance life safety with help of engineering aspect, environmental aspect, behavioral aspect, and legal aspect. I feel that the design and construction technology for road needs to be evolved, keeping in view the environmental effect on the surrounding area, as road infrastructure project induce a different impact by the technology used during the construction and to be used during the operation mode. I would like to add that a number of strategies are already in place for the road sector to take into account environmental impact of the road project. Another important thing is a worldwide concern for a road safety on both new and existing road projects is growing day by day. In today's world, road and transport has become an integral part of every human being. Everybody is a road user in a way. With the improved road, it has as the transportation, at the same time there has been a increase in accidents also, and every year lot of lives are also lost. Men behind a wheel plays an important role, and hence road safety is education is a must for reduction in accidents. It is also a shared responsibility. Safe road network requires a holistic view of a road transport system and the interaction among the road and roadside travel speed, vehicle and road users. Accident reduction and accident prevention are the two main strategies in planning for a road safety. Sir, time has again come in plan for another major change in our construction practice. Currently, the use of recycled material as per IRC 120, construction demolition waste as per IRC 121, and industrial waste material for existing pavement are widely used in our country. I would strongly advocate that we put in place a well laid down policy and strategy on this front. Sir, at this juncture, I also want to congratulate Secretary General and his team for dedicated effort in getting 100 new or revised documents prepared, approved and released for the implementation in road sector in last 6 years. Today also we are going to release about 8 documents covering the hill roads, bridges, cable stayed bridge, urban road, violence detection and other things. Sir, the Indian Road Congress, as a prelude in incorporation of latest material, technology, equipment in our respective codes of practice, has a system of giving an accreditation to the material, technologies and equipment. There is a need to utilize such materials in a field to monitor their performance. For this, support of everyone is essential to work out a suitable mechanism for encouraging the use of such material. This would help in upscaling the successful technologies in
day-to-day projects, and also feedback given will help IRC in formulating policies and codes. Sir, in the end, I again wish to thank our Honorable Union Minister of Road Transport and Highways, Sri Nitin Gadkari Sahab, Honorable Chief Minister of Gujarat, Sri Bhupendra Bhai Patel Sahab, Sri Rajkumar Sir, Chief Secretary, for kindly gracing the occasion, and also thank the learned dignitaries present here, past President, office bearers of IRC, and for remaining present and making this session successful. I also thank the Roads and Building Department team of Government of Gujarat, headed by Sri A.K. Patel Sahab, for making this venue and event a grand success. I also thank press and media presence here for making this thing a memorable function. Jai Hind, Jai Guru Gujarat. Thank you very much, sir, for your inspiring words. और अब समय है अवार्ड वितरण का। अपने रिसर्च पेपर्स के जरिए श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सभी अवार्डीज को IRC सम्मानित करते हुए गौरवान्वित है। मैं विनम्र अनुरोध करना चाहूंगी इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से कि आप अपने करकमलों के द्वारा इन अवार्डीज को सम्मानित करें। सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री राजीव छतराज, चीफ इंजीनियर, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। इंडियन रोड्स कांग्रेस मेडल अवार्ड goes to Shri Rajiv Chhatraj for his paper number 705, construction of high-level major bridge on river Hatania-Duania of National Highway 117 in the district of South 24 Pargana, West Bengal, challenges, innovations and success of EPC model, which was printed in the Journal of the Indian Roads Congress, Volume 81, Part 1, presented and discussed during the 81st annual session at Lucknow in October 2022. I would now request Shri Dhrubijyoti Bhattacharya and Shri Amitabh Datta to please come upon the stage. Indian Roads Congress Medal for Best Paper on Construction instituted by the Maharashtra PWD goes to Shri Dhrubijyoti Bhattacharya and Shri Amitabh Datta for their paper number 709, Basic Technology and Method for Large Diameter Casting Setu Board Piles of 2.5 meter dia in river and its requisite tests for construction of major bridges, which was printed in the Journal of the Indian Roads Congress, Volume 81, Part 2, presented and discussed during 81st annual session at Lucknow in October 2022. अब आमंत्रित करते हैं श्रीमती अरुंधति शर्मा को। Indian Roads Congress Medal for Best Paper on Maintenance instituted by the Central Public Works Department goes to Mrs. Arundhati Sharma, Superintending Engineer, Maharashtra, for her paper Rehabilitation of Major Bridges Case Studies, printed in Indian Highways Volume 51, 6 June 2023. हमारे अगले अवार्ड विनर्स हैं श्री अनिल कुमार बदिता, श्री अरुण कुमार गोली, प्रोफेसर अमरनाथ रेड्डी और प्रोफेसर के सुधाकर रेड्डी। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर गुरुनाथ गुरुडू को कि वे मंच पर पधारे और ये सम्मान स्वीकार करें। इंडियन रोड्स कांग्रेस प्रोफेसर B.B. पांडे मेमोरियल अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय IIT खड़गपुर goes to श्री अनिल कुमार बदिया, Shri Arun Kumar Goli, Professor M. Amarnath Reddy and Professor K. Sudhakar Reddy, IIT Kharagpur, for their paper number 703, an investigation on mechanical properties and routing performance of plant-produced high modules
Asphalt Mixes, printed in the Journal of the Indian Roads Congress, Volume 81, Part 1, presented and discussed during 81st Annual Session at Lucknow. Now I would like to invite Shri C.P. Joshi, Indian Roads Congress, instituted for Best Paper on Research by the Bihar PWD, goes to Mr. C.P. Joshi for their paper, Critical Review of Use of Specific Synthetic Macrofibers in the Production of Fiber Reinforced Concentrate for Road and Other Infrastructure Works, printed in Indian Highways, Volume 51. और अब आमंत्रित करते हैं श्री सचिन कुमार, BRO, Indian Roads Congress Young Engineers Award goes to Shri Sachin Kumar, BRO, for his paper entitled Use of Hybrid Reinforced Earth Walls in Mountainous Terrain, printed in Indian Highways, Volume 51 on 9th September 2023. और अब समय है नेहरू अवार्ड का। मंच पर आमंत्रित करते हैं प्रोफेसर A.K. स्वामी। आपसे अनुरोध करते हैं कृपया मंच पर पधारे। नेहरू अवार्ड इन रिकग्निशन ऑफ आउटस्टैंडिंग वर्क इन engineering technology utilization etc. in the highway sector for encouraging young and upcoming engineers or scientists in the profession goes to Professor A.K. Swami, IIT Delhi. And now I would like to invite Shri S.K. Puri and Shri P.L. Pongivar to please come upon the stage. The Lifetime Achievement Award for the year 2023 in recognition of the lifetime contribution in highway engineering by eminent personalities goes to Shri S.K. Puri, former DG and SS Ministry of Road Transport and Highways. और साथ ही आमंत्रित करते हैं श्री P.L. बोंगेवार, फॉर्मर सेक्रेटरी PWD महाराष्ट्र। IRC आपको सम्मानित करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सभी अवॉर्डीज को बहुत बहुत अभिनंदन, शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपका। धन्यवाद। So ladies and gentlemen, now it's time for releasing the souvenir and a coffee table book regarding 22nd IRC एनुअल सेशन। मैं विनम्र अनुरोध करना चाहूंगी गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आप 82वें IRC एनुअल सेशन के बारे में रचित सोवेनियर और कॉफी टेबल बुक को अपने करकमलों से विमोचित करें।
Thank you very much, sir. And now I would request our Honorable Union Minister to release the documents about IRC 22nd Annual Session. Total 8 documents are there. Guidelines on financial analysis of road projects, guidelines for highway engineers on disaster-resilient green highways in multi-hazard ecosystem, Hill Road Manual first revision, specifications for stone matrix asphalt, guidelines for design, construction and maintenance of cable-stayed bridges, guidelines for design, construction and maintenance of extra-dosed bridges, manual for speed violation detection system, बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर आपका। प्रगति का पर्याय यानी गुजरात और यहाँ की प्रगति को प्रतिदिन नई ऊंचाइयों तक ले जाने तत्पर है यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तथा ईज ऑफ लिविंग के साथ गुजरात के सर्वांगीण विकास में अपना अमूल्य मार्गदर्शन दे रहे माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्य मंत्र है विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात। देवियों और सज्जनों, आइए अपनी करतल ध्वनि के साथ सादर आमंत्रित करते हैं गुजरात राज्य के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी को अपने प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। राज्य के पाटनगर गांधीनगर में इंडियन रोड कांग्रेस के 82वें अधिवेशन के कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, हमारे राज्य के मुख्य सचिव श्री राजकुमार जी, आईआरसी के अध्यक्ष श्री एसबी वसावा, आईआरसी के वाइस प्रेसिडेंट श्री आर के मेहरा, श्री पूनम कपूर, श्री प्रोफेसर मनोरंजन परिंदा, अरविंद कुमार जैन, सेक्रेटरी जनरल श्री एस के निर्मल, हमारे राज्य के सचिव श्री ए के पटेल, पूर्व अध्यक्ष श्री सीपी जोशी, लोकल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्री ए जे गांधी, यहाँ उपस्थित सभी चीफ इंजीनियर्स, डेलीगेट्स, आमंत्रित महानुभाव एवं उपस्थित अधिकारीगण, प्रेस मीडिया के मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जन्म जयंती के अवसर पर उनकी दिव्य चेतना को मैं नमन करता हूं। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और विश्व के सबसे अधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की भूमि गुजरात में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज 82वें आईआरसी अधिवेशन का आयोजन ऐसे महत्वपूर्ण समय में गुजरात की धरती पर हो रहा है जब गुजरात के सपूत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। आज देश का नेतृत्व विकास पुरुष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों में है, तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है। इस संकल्प को साकार करने में मैं आपको गारंटी करके आप लिख लो, रोड नेटवर्क से जुड़े आप सभी एक्सपर्ट्स का भी अहम योगदान है। इस 2 दिवसीय अधिवेशन में बेस्ट प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस, नॉलेज शेयरिंग तथा रिसर्च पेपर्स भारत में रोड डेवलपमेंट को नई गति और नया स्केल देने में काफी लाभकारी साबित होंगे, ये मेरा विश्वास है। साथियों, किसी भी राष्ट्र का या राज्य के विकास को गति देने में
रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। हमारे विजनरी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने इसी को इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए देश में पिछले 9 सालों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी बल दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के दिशा निर्देशन में देश भर में अति आधुनिक वर्ल्ड क्लास रोड नेटवर्क का काम बहुत तेजी गति से किया जा रहा है। 2014 से सड़क परिवहन और नेशनल हाईवे के बजट आवंटन में 500% की बढ़ोतरी की गई है। पिछले 9 सालों में नेशनल हाईवे और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में निर्माण में 54,000 किलोमीटर का विस्तार हुआ है। 2014 से करीब 3.25 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़क का निर्माण हुआ है और 99% गांव के रोड कनेक्ट हो चुके हैं। सरकार अगले 3 सालों में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक फैसिलिटीज के लिए 100 पीएम गति शक्ति टर्मिनल्स को डेवलप करेगी। आज हमारा मजबूत रोड नेटवर्क भारत के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए एक कैटालिस्ट साबित हो रहा है और देश के अलग अलग राज्यों से इन अधिवेशन में पधारे आप सभी इस रोड नेटवर्क के कैटालिस्ट एजेंट है। भारत में लगभग पिछले 19 इयर्स से रोड एंड ब्रिज कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस के स्टैंडर्ड्स सेट करने में इंडियन रोड कांग्रेस का अहम योगदान रहा है। आईआरसी का मुख्य उद्देश्य समय समय पर रिसर्च, पब्लिकेशन, कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स के माध्यम से भारत में नए निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता में सुधार, मौजूदा सड़कों का विकास और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में सुधार करना है। हमारे पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री दिग्वंत श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था, सड़क है तो गति है और गति है तो प्रगति है। बदलते समय के साथ देश में वाहनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग के समय तथा मौसम के बदलते रुख के साथ सड़क निर्माण तथा ब्रिज डिजाइन्स में भी समय के अनुसार बदलाव जरूरी है। आज इस अवसर पर मैंने रोड निर्माण कार्य के एग्जीबिशन की मुलाकात की। ग्लोबल टेक्नोलॉजी के उपयोग तथा अपडेट मशीनरीज की जानकारी के लिए आप सभी को उनकी मुलाकात अवश्य लेनी चाहिए। मेरे को लगता है कि भाई मैंने अधिवेशन देख के आया मैं, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है और जो सॉल्यूशन करते हैं आज एग्जीबिशन में साथ दिखे, लेकिन एग्जीबिशन के बाद साथ में बैठते नहीं लगते मेरे को। तो जरूर जो सॉल्यूशन करना है और मेक इन इंडिया सॉल्यूशन सभी है और प्रधानमंत्री जी भी पर्यावरण को साथ रखते जोड़ते हुए हम विकास को चाहते हैं, तो पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छे सॉल्यूशंस है। तो हमको उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है और हमें आगे बढ़ना है। आईआरसी ब्रिज डिजाइन्स, मल्टी लेयर ब्रिज और रोबस्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आपको इस एग्जीबिशन से भी ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी को जानने का अवसर मिलेगा। साथियों, गुजरात को फिर एक बार आज आईआरसी के अधिवेशन का यजमान राज्य का गौरव मिला है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का वतन राज्य गुजरात आज देश में विकास का रोल मॉडल है। प्रधानमंत्री जी ने दूर दराज के गांव को भी सड़क परिवहन से जोड़ने की प्रेरणा हमें दी है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री के पद चिन्ह पर चलते हुए गुजरात के सड़क निर्माण विभाग के बजट में इस वर्ष 20,600 करोड़ रुपया, 20,600 करोड़ रुपया से अधिक बजट का प्रावधान किया है। यह प्रावधान पिछले वर्ष की तुलना में 71% अधिक है। इस साल के बजट में गुजरात ने राज्य के टूरिज्म सर्किट को जोड़ने वाली सड़कों को विकास के लिए 600 करोड़ रुपया का प्रोविजन किया है। साथ ही में सीमावर्ती विस्तारों को पूरी तरह से रोड नेटवर्क से जोड़ने के लिए परिक्रमा पथ के तहत
500 करोड़ रुपए के प्रावधान किया है। राज्य में 5 नए हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण कार्य प्रगति में है। हम सड़क व ब्रिज निर्माण के कार्य में जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन तथा नो कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। राज्य के छोटे बड़े सभी ब्रिज का सर्वे किया गया है। इस सर्वे के अनुसार जरूरियातमंद ब्रिज के स्ट्रेंथनिंग को प्रायोरिटी देकर रिपेयरिंग के लिए बजट में से फाइनेंशियल प्रोविजन भी किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विकसित भारत एट 2047 का संकल्प हमें दिया है। इस संकल्प को साकार करने की दिशा में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क व ब्रिज निर्माण में क्वालिटी वर्क अप्रोच तथा ग्लोबल टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए IRC भी अपना योगदान दे। आप ब्रिज तथा रोड रिपेयरिंग के लिए जरूरी मेंटेनेंस पॉलिसी बनाए तथा समय पर इसे अपग्रेड करते रहते हैं। इसके लिए आपका सबका धन्यवाद। विश्व के अन्य राष्ट्रों के टेंडर डॉक्यूमेंट के स्टडी करने का भी हमको उचित समय लगता है। विकसित भारत 2047 के निर्माण में रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत रोड एंड ब्रिजेस के निर्माण को हम सब सहयोग करें। और आज जिसको आज अवार्ड मिला है उस सभी को मैं खूब खूब धन्यवाद देता हूं। फिर एक बार आप सबका गुजरात की धरती पर स्वागत करते हुए IRC के इस अधिवेशन को सफलता की शुभकामनाएं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री आपके इन प्रेरणादायी शब्दों के लिए। Ladies and gentlemen, it's not the destination, it's the journey that matters. And the journey becomes a joy when the roads are smooth, safe and comfortable. The Indian Ministry of Road Transport and Highways is committed to build efficient, sustainable, safe, qualitative, cost-effective and environment-friendly road infrastructure for the nation's faster progress. समृद्धि के प्रवेश द्वार है हमारे राजमार्ग, जिस पर नए भारत की प्रगति का रथ तेजी से दौड़ रहा है। और ये सब संभव हुआ है इस मंत्रालय की बागडोर कुशलता से संभालने वाले माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के अथक परिश्रम से। पिछले 9 वर्षों में भारत के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड नेटवर्क निर्माण की स्पीड और स्केल माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के ही दृढ़ संकल्प और प्रभावशाली कार्यान्वयन का परिणाम है। Ladies and gentlemen, with a big round of applause, please welcome our Honorable Union Minister of Road Transport and Highways, Government of India, Shri Nitin Gadkari ji, for his keynote address. गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र भाई जी, गुजरात सरकार के चीफ सेक्रेटरी आदरणीय राजकुमार जी, IRC के प्रेसिडेंट SB वसावा जी, सेक्रेटरी जनरल श्री SK निर्मल जी, पूर्व अध्यक्ष CP जोशी जी, गुजरात PWD के सेक्रेटरी श्रीमान पटेल जी, उपस्थित सभी अतिथिगण और उपस्थित सभी IRC के इस अधिवेशन में शरीक हुए भाई और बहनों, सबसे पहले 82 करीब 82वां एनुअल सेशन है और इसके उपलक्ष्य में मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, शुभेच्छाएं देता हूं। वैसे जो सिविल इंजीनियर है, जो रोड कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, वो आधुनिक भारत के विश्वकर्मा है, क्योंकि आपने जो भी चीजें बनाई हुई है वो जनता कभी भूल नहीं सकती। आज जब मैं यहाँ आया तो यहाँ का ये जो गांधी मंदिर का परिसर मैंने देखा तो मैं लगातार सोच रहा था कि इसको बनाते समय जिसकी सोच थी, जिसका डिजाइन था, जिन्होंने काम किया, जिन्होंने इतनी अच्छी क्वालिटी रखी,
तो स्वाभाविक रूप से गौरवान्वित होते हैं, उनको याद करते हैं। और मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से सबसे बड़ा जॉब सेटिस्फैक्शन अगर कोई होता है तो आपने किए हुए काम के बारे में जब लोगों के मन में उसके प्रति प्रशंसा होती है, समाधान होता है, दैट इज टू बी द वन ऑफ द बेस्ट अवार्ड इन द लाइफ। आज यहाँ काफी लोगों ने जो अच्छा काम किया उनको अवार्ड दिए गए। उन सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। सबके नाम मुझे पता नहीं है क्योंकि सबके साथ काम करने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला, पर आज जो एक अवार्ड दिया गया हमारे मिस्टर बोंगीरवार, वो चीफ इंजीनियर थे महाराष्ट्र में, और मैंने एक महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन की स्थापना की। 5 करोड़ का कैपिटल था और बोंगीरवार जी चीफ इंजीनियर थे, और उसी समय मुझे 3 आइकॉनिक प्रोजेक्ट बनाने का सौभाग्य मिला। उसमें से एक प्रोजेक्ट थे मुंबई में 55 फ्लाईओवर्स, और दूसरा प्रोजेक्ट था वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट, और तीसरा प्रोजेक्ट था मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे। ये तीनों प्रोजेक्ट में बोंगीरवार जी ने मेरे साथ काम किया और आज उनको अवार्ड मिला, इसकी मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे एक बार याद है कि अमिताभ बच्चन जी से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे रोड की, ब्रिजेस की काफी बातें वो करने लगे। तो मैंने विषय चेंज करके कहा कि मैं तो फिल्म आपकी बहुत पसंद करता हूं। जो आनंद सिनेमा था वो मैंने 7 बार देखा, दीवार भी मैंने 4 बार देखा, क्योंकि फाइटिंग के पिक्चर मुझे बड़े पसंद होते थे। तो अमिताभ बच्चन जी ने मुझे कहा कि देखो नितिन जी, आप कह रहे हो ये ठीक है कि अगर कोई फिल्म अच्छी होती है, संगीत अच्छा होता है, गाना अच्छा होता है, तो लोग कितना भी ज्यादा से ज्यादा उसको साल भर याद रखते हैं, पर हम मुंबईकर आपको रोज याद रखते हैं। शायद आप भूल गए होंगे, क्योंकि हमारा समय रोज आपके कारण बचता है और हम आपको रोज याद करते हैं, क्योंकि ये अच्छे फ्लाईओवर्स, ये वर्ली बांद्रा, इसने हमारे जीवन को काफी सुखमय किया। मैं तो मुंबई छोड़कर बहुत दिन हो गया, आजकल मुंबई में मेरा जाना भी नहीं होता, पर लोग मुझे मेरी याद करते हैं। और इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी अच्छा काम आपके हाथ से होगा, लोग निश्चित रूप से उसको याद करेंगे। और इसलिए आप ऐसा काम करिए कि जो अच्छा भी होगा, अच्छी क्वालिटी भी होगी और डिजाइन भी अच्छा होगा। और अगर आप में ये पूरे काम के प्रति समर्पित भाव होगा, डेडिकेशन होगा, तो निश्चित रूप से ऐसी ही कृति आपके द्वारा होगी जिससे स्टेट ऑफ आर्ट काम आपके द्वारा होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोफेशन के साथ लॉयल्टी। आप सबकी लॉयल्टी प्रोफेशन के साथ है, पर उसके साथ साथ जो काम मैं कर रहा हूं, मैं ऐसा करूंगा, इतना अच्छा करूंगा कि लोग उसको याद रखेंगे। और मैं देश के लिए काम कर रहा हूं, ये अगर भाव होगा तो निश्चित रूप से और अच्छा काम हो सकता है। मैं जब स्कूल में था तो बहुत से बच्चे 5-5, 6-6 घंटे अध्ययन करते थे। तो एक बार एक लड़का फेल हो गया, तो जब फेल होने के बाद उसके माताजी और पिताजी जब आए कि ये तो 6-6 घंटे अध्ययन करता है, ये फेल कैसे हुआ, तो टीचर को भी प्रश्न पड़ा कि ये फेल क्यों हुआ है। तो जब उन्होंने लड़के को पूछा कि तुम इतना 6 घंटे रोज अध्ययन करते हो, तुम फेल कैसे हुए, तुम क्या करते हो घर पर, तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मैं स्कूल में जब रहता हूं तो मैं रफ में लिखता हूं और घर में जाके फेयर करने का काम करता हूं। ये रफ टू फेयर करने वाले लोग बहुत होते हैं, ऐसा काम सरकार में मत करिए। There is a difference between letter and spirit. The spirit behind the vision is very important. You can donate eye, but you cannot donate vision. आप विश्वकर्मा हैं,
और स्वाभाविक रूप से आपके हाथ से जो चीज बन रही है वो सालों साल देश याद रखने वाला है। तो मुझे लगता है कि इतना ही अच्छा काम आप सब लोग कर रहे हैं और इसीलिए निश्चित रूप से लोगों में मन में भी उसके प्रति समाधान है। एक दूसरी चीज और महत्वपूर्ण है कि जो आप सब लोगों ने जिसके ऊपर वैसे भी विचार किया है और आप करते भी होंगे कि हमारे रोड कंस्ट्रक्शन की 4 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो जो इंपॉर्टेंट बात है उसमें से पहली बात है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी वी नीड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। और ये हो सकता है। सरकार में किसी को बदलना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि किसी ने अच्छे भाव में बदलने की कोशिश की तो ऊपर का साहब पूछता है तुम क्यों बदले हो, क्यों डिजाइन बदला तुमने, नहीं बदलते तो क्या होता, तुमको क्या जरूरत थी। तो कोई बदलने के मूड में नहीं होता, पर इसमें से वे आउट निकालना पड़ेगा। वी हैव टू चेंज द माइंड सेटअप एंड वी हैव टू थिंक अबाउट पॉजिटिविटी एंड फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए हम लोग कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कैसे कम कर सकते हैं। बहुत बार कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इसलिए बढ़ती है क्योंकि डिले होता है, कोई समय पे लैंड नहीं मिलती, कोई यूटिलिटी शिफ्टिंग नहीं होती, कोई एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलता, इसके कारण बहुत कठिनाइयां आती है। मैं जब 2014 में मंत्री बना तो पूरे डिपार्टमेंट में 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के बन पड़े थे। करीब 3 लाख करोड़ एनपीए अकाउंट होने की स्थिति में लगभग थे, कुछ हो गए थे बैंकों में। और मैं रोज बैठता था कि अवार्ड किए गए प्रोजेक्ट पर लैंड एक्विजिशन नहीं हुई, फिर लैंड मिली तो एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिला, एनवायरमेंट क्लियरेंस मिला तो रेलवे का काम रुका है, रेलवे का काम रुका है तो कोर्ट ने स्टे दिया। हमारे देश में ऐसी मानसिकता है कि काम करो करके कोई चिट्ठी लिखता ही नहीं, काम बंद करो, काम रोको, काम को स्टे करो, और जिसके कारण फिर डिले होता है। तब हिंदुस्तान के जितनी मशहूर कंपनियां थी जो रोड कंस्ट्रक्शन में जिनका नाम था, उसमें से 90% कंपनियों को हमने पूरा डुबाने का यशस्वी कार्य उस समय कर दिया था। मैं कभी कभी मजाक में कहता हूं, अब सीरियसली मत लो, जिनको महीने में सैलरी मिलती है उनको बैंक से कर्जा लेने के बाद कितना ब्याज भरना पड़ता है इसकी कभी कल्पना नहीं आती। मैंने एक अधिकारी को पूछा, आपको तो लाजवाब हो। बोले क्यों सर? मैंने बोला पत्नी से भी ज्यादा फाइल पर प्रेम है आपका, 4-4 महीने दबा के बैठे हो। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। आप कौन सा निर्णय कर रहे इससे कोई संबंध नहीं, निर्णय करो। निर्णय नहीं करना, निर्णय टालना, निर्णय को डिले करना इज ए बिग प्रॉब्लम। बने तक आपका निर्णय अगर सही है और जल्दी आपने किया तो उसका बहुत बड़ा फायदा होता है। मैं कभी कभी कहता था कि आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन, आई लाइक ऑनेस्ट पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। इवन आई लाइक द पीपल। अब ऐसा है कि कभी कभी ये बोलना उचित नहीं है, पर गलती हो सकती है। अगर गलती बोनाफाइड है तो उसको माफ करना चाहिए। मैं सरकार में अक्सर कहता हूं, इफ द मिस्टेक्स इज मैलाफाइड तो फिर जरूर उसके ऊपर कार्रवाई करें। पर लकीर के फकीर होते हैं, तो सिस्टम में थोड़ा कुछ हुआ कि लग इंक्वायरी लगा देते हैं, तो लोग डिमोरलाइज हुए हैं। अच्छे काम करने वालों को डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए। और दिस इज द टाइम दैट we have the people who can get the things done honestly, transparently and time bound. और ये करने से कॉस्ट कम होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अल्टरनेटिव मटेरियल को ढूंढना चाहिए। अब स्टील और सीमेंट के बारे में इनकी मोनोपोली हो गई, ये विदाउट एनी रीजन रेट बढ़ाते जाते हैं। अगर अल्टरनेटिव तैयार हुआ तो बहुत फर्क पड़ता है।
मुझे याद है कि मैं जब मंत्री बनता तो मुझे मालूम है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशंस। अब कुछ कुछ राज्यों में तो ऐसी स्थिति है, मैं नाम नहीं लूंगा, कि इतना ही लिखना बाकी था कि काला कोट पहना हुआ जो कॉन्ट्रैक्टर आएगा वो टेंडर दे सकता है, इतना ही लिखना बाकी था। यानी शादी होने के पहले ही कौन सा बच्चा होने वाला है, लड़का या लड़की, उसकी कुंडली पहले ही बन जाती है। सबसे गड़बड़ी शुरू होती है फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल क्वालिफिकेशंस। क्या इसके लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं बन सकती? हर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट क्यों नए नए बातें आती है उसमें? और मैं ये बिल्कुल ध्यान में आता है, किसी एक व्यक्ति को मदद करने के लिए क्वालिफिकेशंस बदलते हैं, बनते हैं, ये ठीक नहीं है। आप उसमें से ऐसा करने वाले आप में से कोई नहीं है, पर ये चीजें होती है। आज बोंगीरवार साहब थे, मुझे याद है, हमने मुंबई में उस समय जब उड्डान पुल बनाए थे तो उसकी कॉस्ट थी 3600 करोड़, एस्टिमेटेड कॉस्ट थी। और हमने पॉलिसी एक ही बनाई, और जब उसको 10% मशीनरी एडवांस दिया, मोबिलाइजेशन एडवांस दिया, तो आपको आश्चर्य होगा, हमारे उड्डान पुल जो थे उसकी 1800 करोड़ कॉस्ट थी, एस्टिमेटेड कॉस्ट, हमने 900 करोड़ में बनाए, 50% पैसा बच गया। हमारा मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, उस समय धीरूभाई अंबानी थे, वो मेरे ऊपर बहुत नाराज हुए थे, मैंने उनका टेंडर रिजेक्ट किया था, पर उनका मेरे ऊपर प्रेम भी था। और जब वो टेंडर रिजेक्ट किया था वो 3600 करोड़ का था, और जब लोवेस्ट आए थे, 3 टेंडर आए थे, उसमें वो लोवेस्ट है। तो मैंने उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी को कहा कि ये 3600 करोड़ ज्यादा कॉस्ट होती है, अगर 1800 करोड़ तक वो निगोशिएट करके करते तो देना चाहिए, नहीं तो नहीं देना चाहिए। मामला विवाद का बना, और जब मुझे बहुत आग्रह हुआ तो मैंने कहा एक काम करिए, मेरा डिपार्टमेंट बदल दीजिए और दे दीजिए कॉन्ट्रैक्ट। आखिर वो रिजेक्ट हो गया। तो मैं धीरूभाई को मिलने के लिए गया था, उनकी नाराजगी दूर करने के लिए। पर बाद में ये रोड जो है ये 1600 करोड़ में बना, 18 यानी आज का 1600 करोड़ बच गए, यानी आज के कम से कम 20,000 करोड़ बचे। रोड भी अच्छा बना। तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे लगता था कि कभी रोड नहीं बनेगा, पर रोड बना है। तो मेरे ऐसी बात हुई थी, तो मैंने उनके साथ शर्त लगाई थी। तो बोले मैं हार गया, तुम जीत गए। बोला नहीं नहीं धीरूभाई, आप मेरे पिता समान है, आप ऐसा मत कहिए। और बाद में वो बहुत खुश हुए, रोड बनने से उनको बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे लगता है अभी झुझीला टनल की यही हुई कि 4 बार टेंडर हुआ था और उसकी कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000 करोड़ थी। हमारे अधिकारियों ने, सबने मेहनत की, एसोसिएशन करके ऑर्गेनाइज उसके साथ बैठे, टेक्निकल फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन बदले, और आपको आश्चर्य होगा कि अब 70-75% काम हुआ है, और एक ही प्रोजेक्ट पर 4,500 से 5,000 करोड़ की बचत हुई है। टू सेव मनी इज टू अर्न मनी। तो पहली बात तो कॉस्ट, क्वालिटी अच्छी बनाते हुए कॉस्ट को कम करने में आप लोग विशेष प्रायोरिटी दीजिए। दूसरी बात, जो अल्टरनेटिव मटेरियल्स को यूज करिए। हमारे वित्त मंत्री जी ने सर्कुलेशन इकोनॉमी की बात की है। अब रबर टायर की जो पाउडर है वो बिटुमिन में डालकर रबराइज बिटुमिन किया तो कॉस्ट ऑफ बिटुमिन कम हो सकती है। प्लास्टिक 7% डाल सकते हैं। हमारे विशेष रूप से जो वेस्ट मटेरियल है उसका यूज हो सकता है। मैं गुजरात की सरकार को धन्यवाद दूंगा कि अहमदाबाद डोलेरो ये जो हाईवे बन रहा है, और मुंबई दिल्ली हाईवे में जो बना था उसमें हमने अहमदाबाद की करीब 20 से 25 लाख टन कचरे का उपयोग किया। यही स्वच्छ भारत अभियान जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं। और दिल्ली में भी अभी पेरिफेरल रोड में भी किया। वो जो टेकड़ी थी दिल्ली की, मैं कभी कभी बोलता था ये पर्यटन स्थल है। दिल्ली में कचरे के 3 बड़े माउंटेन बने हैं, तो वो अब 12 से 14 मीटर डाउन हो गई, वो भी हमने यूज किया। तो इससे सेविंग भी होता है। और रोड बनाते बनाते महाराष्ट्र में मुझे इतनी खुशी हुई, क्योंकि मैं किसान हूं,
मैं यहां से आता हूं, विदर्भ में से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, और इसलिए हम लोग प्रचार करते थे कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। एक पंजाबराव देशमुख एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अकोला में, वहां हमने फ्री ऑफ चार्ज 36 अमृत सरोवर बना के दिए। वेटरनरी यूनिवर्सिटी को 2 अमृत सरोवर बना के दिए। और आपको ताज्जुब होगा, जिस यूनिवर्सिटी में इरिगेशन केवल 350 एकड़ का था, उस यूनिवर्सिटी में अब इरिगेशन 3500 एकड़ का हुआ। और वो मिट्टी जो फ्री ऑफ चार्ज हुआ, वो मिट्टी हमने निकाली और रोड में लाई। बुल्ढाना अजिंठा जगह प्रसिद्ध है, वो पूरे जगह पर काफी सूखा आता था। 15,000 लोग वहां से छोड़कर चले जाते थे। वहां पूरे नदी नालों का खोलीकरण हुआ, लेक का खोलीकरण हुआ, नए लेक बने। अब वहां कोई माइग्रेशन नहीं होता। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कॉस्ट कम करना, अल्टरनेटिव मटेरियल को ढूंढना और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। पेड़ को काटने के फंदे में मत पड़िए, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे याद है अभी महाराष्ट्र में औरंगाबाद के नजदीक पैठन करके जगह है, तो साउथ इंडिया में एक बहुत बड़े फिल्म एक्टर है, विलन का काम करते हैं, सयाजी शिंदे करके। तो वो ट्रांसप्लांटेशन का काम करते हैं। तो मैंने उनको बुलाया और इस समय पैठन में हमने, एकनाथ महाराज का बहुत बड़ा गांव है, वहां 100 साल पुराने बड़ के पेड़ को हमने यशस्वी रूप से ट्रांसप्लांट किया। अब पेड़ ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। और अभी इसी साल NHI ने अभी तक 78,000 ट्रीज को ट्रांसप्लांट किया है। हमने 3.5 करोड़ से ज्यादा 3 मीटर के हाइट के जो पेड़ है वो लगाने का काम किया है। हमें इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, मटेरियल को रिसाइकलिंग भी करना है, और क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज न करते हुए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना है। ये एजेंडा विशेष रूप से आप जरूर सोचिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। और समय पर काम होना चाहिए। समय पर काम न होने से सरकार में कितना कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है, कितने कॉन्ट्रैक्टर क्लेम्स डालते हैं, कितनी कोर्ट केसेस होती है। मुझे याद है बोंगेरवार जी और हम थे तो हमने मुंबई के 55 फ्लाईओवर के लिए एक छोटा सा नियम बनाया था कि जो 1 दिन पहले काम करेगा एस्टिमेटेड टाइम पीरियड में, उसको 1 लाख रुपए अवार्ड होगा, और जो 1 दिन लेट करेगा उसको 1.5 लाख रुपए फाइन होगा। तो ये जो सांताक्रूज एयरपोर्ट पर ये बांद्रा से एक एलिवेटेड रोड बना है, इसका पीरियड था 4.5 साल। तो कॉन्ट्रैक्टर ने ये 16 या 17 महीने में पूरा कर दिया, क्योंकि उसको बोनस मिला। मुझे लगता है कि टाइम ये सबसे बड़ा कैपिटल है। केवल इकोनॉमिक रिसोर्सेस या कैपिटल नहीं है, टाइम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और टाइम के बारे में भी अगर हमने ये निर्णय किया तो हमारी कॉस्ट भी कम होगी, विवाद भी नहीं होंगे, और इसमें फटाफट काम भी होंगे। तीसरी बात जो है क्वालिटी, जिसके साथ तो आप सबकी कमिटमेंट है, इसके लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। मैं अक्सर एक बात बहुत बार दोहराता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. जो वर्ल्ड में अच्छी प्रैक्टिसेस है, आज मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैं अनेक जगह पर गया था, बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आई, और इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आई कि मुझे लगता है कि इसका उपयोग करना चाहिए। पर मुझे भी आपसे समय बोलते समय संकोच होता है। वैसे भी मैं सरकारी यंत्रणा को कभी कुछ कहता है तो संकोच नहीं करता। अब जिन लोगों ने नए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, उनका सेविंग हुआ, तो हमने नोटिस निकाले उनके ऊपर कि तुम्हारा पैसा बचा, हमको वापस करो। अगर ये किया तो कौन नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा? तो बोला, मैंने कहा ऐसा क्यों किया तुमने? बोले ऑडिट को ऑब्जेक्शन आएगा। ये जो लकीर के फकीर है, ऐसे लोग देश का बहुत ही नुकसान करते हैं। Actually, it is the time for the country that we need to encourage the people for new technology, new initiative.
हमको दुनिया के साथ जाना है, आत्मनिर्भर भारत बनना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है। ये प्रधानमंत्री का सपना है और उसके लिए हमको बदलना है। और अगर अच्छा बदल कर रहे हैं तो उसको हम ऐसा कहेंगे तो कैसे हो पाएगा? वी विल फाइंड आउट द वे आउट। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सॉइल स्टेबिलाईजेशन की होंगी। अभी स्टील फाइबर का यूज करते हुए हम लोग डिस्टेंस बिटवीन 2 पियर जो 50 मीटर तक रहता है वो 120 मीटर तक कर सकते हैं। वो टेक्नोलॉजी है जिससे कॉस्ट बच सकती है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए। 2 चीजें इस डिपार्टमेंट में बड़ी त्रस्त करती है। एक है डीपीआर बनाने वाले, अब क्या शब्द उपयोग करूं, इतनी घटिया क्वालिटी के काम करने वाले मैंने जिंदगी में कोई लोग नहीं देखे। मेरी बात और शब्द वैसे के वैसे उनके पास पहुंचा देना। हर जगह पर कोई घर में बैठ के गूगल पे देख के डीपीआर बनाते हैं। एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और उसमें एक्सीडेंट होने के कारण बहुत से जगह पर फ्लाईओवर की जरूरत है, वो नहीं करते। तो परफेक्शन इन डीपीआर ये बहुत आवश्यक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि डिजाइन्स में और क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज न करते हुए 101% परफेक्ट डीपीआर बने। देखिए ये अच्छा है क्या कि देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते, 1.5 लाख मौतें होती है, देश का 3% जीडीपी का नुकसान होता है, 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं। और मैं तो समझता हूं कि जैसे यज्ञ में बलि देते समय वो ऐसी प्राणी को देखते जो बेचारा कुछ नहीं बोलता, वैसे ही कोई भी एक्सीडेंट हुआ तो ड्राइवर की गलती है। देखिए मैं आपको बताता हूं, मैं माइन्यूट से देखता हूं, बिल्कुल माइन्यूटली मैंने देखा है। बहुत बार गलती जो है वो रोड इंजीनियरिंग की है। आप जो रोड बना रहे हैं उसमें जो रोड इंजीनियरिंग में आप रोड बनाते समय एक्सीडेंट नहीं हो इसकी चिंता करिए। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, 4 जगह पैर टूटा था। कितने लोग मर रहे हैं? 18 से 34 वयोगट में करीब 60% लोग मर रहे। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। क्या देश के लिए अच्छा है? क्या हम लोग ये ब्लैक स्पॉट्स के बारे में ये हो नहीं हो, इसके लिए एज ए इंजीनियर सू मोटो आप कुछ काम कर सकते हैं? मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि रोड इंजीनियरिंग के कारण एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, इस बात को आप जरूर देखिए। और निश्चित रूप से अगर आपने ये किया तो अनेक लोगों की जान बचेगी और उसका दुआ आपको मिलेगा। हमारे देश में पैसों की कोई कमी नहीं, हमारे डिपार्टमेंट तो नहीं है। पर मैं आपको एक बताता हूं कि जो ग्रोथ रेट है वो अगर मल्टीप्लाई करना है तो सरकार के पैसे से तो काम करेंगे ही, पर पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे। मुझे याद है कि मैं इस देश में बीओटी का जन्मदाता हूं। जब पहला हाईवे मैंने बीओटी पर ठाणे भिवंडी बाईपास किया था तो असेंबली में अपोजिशन लीडर ने कहा कि आप अगर रोड बीओटी में कर रहे हैं तो सरकार भी बीओटी पर चलाने के लिए क्यों नहीं देते। बहुत लोग नाराज थे, पर अब सब बीओटी कर रहे हैं। हाइब्रिड एन्युटी आया, बीओटी आया। अभी आपको मैं विश्वास के साथ बताता हूं, मथुरा में मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था और जब वहां के 90 mld स्लज को शुद्ध करने का प्रोजेक्ट था तो मैंने सुझाव दिया कि हाइब्रिड एन्युटी में करेंगे। तो मेरे सेक्रेटरी ने कहा सर ये संभव नहीं है। मैंने बोला टेंडर निकाल के देखो, नहीं होगा तो हम फेल हो जाएंगे, ट्राई तो करके देखो। हमने हाइब्रिड एन्युटी में टेंडर निकाला, त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी आई और मथुरा का अभी प्रोजेक्ट चल रहा है। 90 mld स्लज से शुद्ध पानी निकलता है। पानी मथुरा में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी यूज करती है। वो 25 करोड़ साल का शुद्ध पानी इरिगेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश से लेते थे, उसके बजाय उनको केवल 20 करोड़ में पानी मिला और ये 20 करोड़ त्रिवेणी इंजीनियरिंग को मिलते हैं और केवल 40% सरकार ने दिए और 60% पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में जो एंटरप्रेन्योर था उसने लाए और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में भी पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट संभव है। रोड में तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो अब आने वाले समय में अब परिस्थिति बदल गई है, कॉन्ट्रैक्टर भी स्ट्रांग हुए हैं। तो बीओटी और पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए बीओटी में भी हमें सोचना होगा।
कभी कभी कोई बातें आउट ऑफ बॉक्स होती है। हम गोवा में एक ब्रिज बना रहे हैं और वो केबल स्ट्रेट ब्रिज है जुआरी नदी पर, बहुत सुंदर ब्रिज बना है। तो मैंने उनको कहा इसके ऊपर हम लोग एक व्यूअर गैलरी बनाएंगे और 500 रुपए का टिकट निकालेंगे। अब 500 रुपए का टिकट देंगे तो रोज गोवा में 2 लाख टूरिस्ट आते हैं, तो कम से कम 1.5 लाख लोग आएंगे, क्योंकि ऊपर से पूरा गोवा और समुद्र दिखता है। मैं हमारे डिपार्टमेंट में बहुत कहता रहा, पर एक बात है कि सरकार में तुमने पैसे बचाए तो कोई सर्टिफिकेट देता ना कोई धन्यवाद देता। तो मैंने बहुत बार कहा और कन्विंस करते करते तंग होके मैंने कहा तुम छोड़ दो। मैंने गोवा सरकार को दे दिया और गोवा सरकार वो प्रोजेक्ट कर रही है और गोवा सरकार उसमें से बहुत पैसा कमाएंगी। अब वो टेंडर निकाला उन्होंने। तो रोड का काम करते करते समय इनोवेटिव मॉडल से हम अगर पैसा मिल सकता है तो उसको मिलाना चाहिए और आए हुए पैसे का उपयोग फिर करना चाहिए। जिस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उल्लेख किया गया मुख्यमंत्री जी ने, मुझे याद है अटल जी प्रधानमंत्री थे, मैं बहुत यंग मंत्री था महाराष्ट्र में। तो अटल जी ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि नितिन, ये गांव को जोड़ने वाली योजना तैयार करो, अब शहर में बहुत काम हो गया। तब मैंने 3 महीने मेहनत करके एक रिपोर्ट तैयार की थी और वाजपेयी जी को दी थी। उसी योजना का नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो मुझे फायदा ये हुआ कि मैंने मुंबई के पूरे फ्लाईओवर पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से, कैपिटल मार्केट से पैसे लाए, वर्ली बांद्रा और मुंबई पुणे हाईवे के लिए। और जो बजट था वो पूरा गांव को जोड़ने के लिए खर्चा किया, गरीबों के लिए दिया। द इंस्पायरेशन बिहाइंड पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, हाउ वी आर गोइंग टू मोर हेल्पफुल फॉर द पुअर पीपल हु आर सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड। तो उनके रोड बन गए, नहीं तो ये सब बजट में होते हैं। तो मुझे लगता है कि पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के भी इनोवेटिव मॉडल को आप जरूर लीजिए। एक इंपॉर्टेंट चीज है जो है कि विवाद जो है उसको टाल सकते हैं क्या। अब प्रधानमंत्री जी ने विवाद से विश्वास, ये स्पेशल पॉलिसी बना के दी है। पर हमारे यहाँ क्या होता है मिनिस्ट्री में, व्हेन देयर इज ए डिस्प्यूट बिटवीन 2 persons, 1 person कैनॉट बी ए जज। पर सरकार में आदत ये होती है कि विवाद हमारे साथ है, जज भी हम ही रहेंगे। तो जो विवाद में पार्टी है वो जज कैसे बन सकता है। पर सरकार में सभी लोग बराबर है, परफेक्ट ही है। राजा को तो कहना ही पड़ता है यस सर। जो राजा बोलेगा वो बोला, हमारे मराठी में राजा बोलेगा दाढ़ी हिलेगा, वैसे सुनना ही पड़ता है यस सर। तो सब जगह पर फिर विवाद में सॉल्व ही नहीं हो गए। अगर न्याय देना है तो वी नीड इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, फेयर सिस्टम। अब काफी बड़े प्रमाण में फॉर्मूला भी तय हुआ है। तो ये जो विवाद है, ये कितनी सुप्रीम कोर्ट में केसेस जा रही है, हाई कोर्ट में केसेस जाती है, कितना पैसा सरकार का जाता है। मैं वकील हूं, लॉ ग्रेजुएट हूं और मैं वकीलों के बारे में जानता हूं। कोई वकील नहीं बताता कि ये केस तुम, इसमें लॉ पॉइंट नहीं है, नहीं, अपील करेंगे, हम जीतेंगे। और जो वकील अपॉइंट होते हैं, मुझे मालूम है, हमारे सिग्नेचर से होते हैं। जिनकी प्रैक्टिस नहीं चलती वही हमारे पास आते हैं और उनको हम सरकारी वकील बनाते हैं। यानी कुछ अच्छे भी होंगे और हम उसको अपॉइंटमेंट करते हैं, क्योंकि जो अच्छी प्रैक्टिस चलता है वो काहे के लिए आता है हमारे पास, सिफारिश मांगने के लिए। और फिर वो लड़ते रहता है, पता नहीं कितना पैसा खर्चा होता है। और इसलिए कभी कभी मुझे लगता है कि मराठी में कहावत है की मूर्ख लोक घर बांधतात आणि हुशार लोक किरायाने राहतात। यानी मूर्ख लोग जो होते हैं वो घर बांधते हैं और होशियार लोग किराए से रहते हैं। तो वैसे ही ये होता है। तो ऐसा है कि इसमें से विवाद जो कहे उसको टालकर कोर्ट केसेस को टालिए। कितनी केसेस हैं। और मैं अभी एक वकील को मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जितने जजमेंट हमारे खिलाफ गए 10 साल में, उसके मुझे समरी तैयार करके दो, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। अगर इसका सही रिपोर्ट अगर प्रकाशित हो जाएगा तो जिन्होंने सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया, उनके गलत निर्णयों के कारण वो लोग आज भी सर्विस में है और फिर से वही गलती आगे दोहरा भी रहे हैं। ऐसा क्यों करते हो।
अगर जो सही है उसको एक्सेप्ट करो, गलती होगी तो एक्सेप्ट करो। और ये विवादों को एक बार कम करने के बारे में भी आप सोचो, यही मेरा आपसे अपील है। बाकी तो बातें बहुत बार मैं आपके पास आता हूं तो हर बार बहुत सी बातें बताता हूं जो अपने स्टैंडर्ड्स है, प्लानिंग, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मैनुअल बनाए हैं। पर मैं बहुत आग्रही हूं कि इसको फुल टाइम प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाइए। ये जितने रिपोर्ट आपने तैयार किए, दुनिया बदल रही है, आप इंजीनियर हो, आप क्यों नहीं बदलते हो? वेबसाइट करिए, एक अच्छा मैगजीन निकालिए, अच्छे काम करने वाले लोगों के जो एक्सपेरिमेंट्स है उसको छापिए, ताकि इस सब के कारण क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि वर्ल्ड में जितनी सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस है, केवल देश में नहीं, प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमको वर्ल्ड की नंबर 1 की इकोनॉमी बनना है, हमारे में क्षमता है। और ये अगर बनना है तो वर्ल्ड में जो सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस है उसको भी एक्सेप्ट करना होगा, और हमारी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को क्वालिटेटिव चेंज करना होगा। जो हमारा अच्छा है हम उसको स्वीकार करेंगे, जो हमारा आउटडेटेड है उसको छोड़ देंगे, और जो नई नई अच्छी बातें उसको स्वीकार करके इस क्षेत्र को क्वालिटेटिव अच्छा बनाएंगे। ये संकल्प आप सब लोगों ने किया तो हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का फील्ड पूरा बदल सकता है। वो ताकत आप में है, आप इसको बदल सकते हैं। और इसलिए मुझे खुशी है कि ये IRC के इसमें आपने कोड्स के बारे में, डिजाइन के बारे में, अनेक बातों पर काफी अध्ययन करते हैं, और इसके अनुभव से हमारे क्षेत्र को और राज्य के PWD को और भारत सरकार को सुधारने के बारे में भी आप रिपोर्ट दीजिए। और निश्चित रूप से उन बातों को स्वीकार करके हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स जो है उसके बराबरी में पहुंचने की कोशिश करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आपके कभी कभी क्रेडिट हमको मिलता है कि भाई अच्छा काम होता है। मैं तो इंजीनियर भी नहीं हूं और मुझे बहुत ज्यादा समझता भी नहीं है, पर काम आप करते हो, क्रेडिट मुझे मिलता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से मंत्री का नाम होता है। तो पर ये जो मेरा क्रेडिट है मेरा नहीं है, ये आप सब लोग जो रात दिन मेहनत करते हैं उसको है। मैं अक्सर एक मैथमेटिक्स के इक्वेशन को, मैं मैनेजमेंट का भी स्टूडेंट हूं, अक्सर एक बात बताता हूं कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। But when A and B comes together, thinks together and works together, A plus B ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है A square plus B square plus twice AB. This twice AB is a result of collective team spirit. और मुझे विश्वास है कि आप सबकी टीम जो मिलकर काम करती है, इसका ये श्रेय है। कभी कभी जो सामने होता है उसको क्रेडिट मिलता है, पर कितने लोग रात दिन काम करते हैं। अभी टनल में लोग फंसे थे, रोज मैं ब्रीफिंग लेता था, बहुत चिंता में रहता था, कुछ हम नहीं कर सकते थे। वहां मेहनत करने एक एक दो दो जितनी अल्टरनेटिव थे, जितने ऑप्शंस थे, जितने मशीन्स थे, सब लाकर काम कर रहे थे कि इनकी जान कैसे बचे। मैं आपको बताता हूं, जो लोग अंदर जाकर, जिन्होंने अपने जान की जोखिम स्वीकार करके काम किया और उन लोगों की जान बचाई, उनको हम कभी भूल नहीं सकते। संकटें आती है, समस्याएं आती है, संकटें और समस्याएं ये जीवन में अविभाज्य है। मैं बहुत बार एक बात याद रखता हूं कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। अब ऐसा मत करिए, आप जो भी समस्या है, आह्वान है, उसको स्वीकार करिए, पॉजिटिविटी के साथ, आत्मविश्वास के साथ, हिम्मत के साथ काम करके आगे बढ़िए। आप आधुनिक भारत के विश्वकर्मा हैं, आपके हाथ से अच्छा काम होगा। इस देश की पीढ़ी से पीढ़ी आपको याद रखेगी और वो काम करने की ताकत और शक्ति आप सबको मिले, यही ईश्वर चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं। और एक अच्छी बात है कि आज गुजरात में आया हूं तो कुछ दिया नहीं और चला गया, ऐसा ठीक नहीं होगा।
मुख्यमंत्री जी से थोड़ी सी चर्चा हुई थी। मैं आज CRF में 1000 करोड़ रुपए के कार्यों को मंजूरी देता हूं। सेतु भारतम में उन्होंने ब्रिजेस भेजे, उसकी कॉस्ट 1400 करोड़ है, तो थोड़ा सा कौन से लेना वो प्रायोरिटी आप दे दीजिए। 1000 करोड़ रुपए उसके लिए भी मैं मंजूरी देता हूं। ऐसे 2000 करोड़ रुपए गुजरात को देने का भी सौभाग्य यहाँ आया हूं तो मुझे मिला है। मैं मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभारी हूं। हमारे सब कामों में राज्य सरकार का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, उसके बिना हम काम नहीं कर पाते। उनको, उनके अधिकारियों को, प्रशासन को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये IRC का इतना भव्य आयोजन हुआ। और देखो, गुजरात से एक बात सीखो। मैंने उनको बोला इतने स्टॉल लाए हैं, अब मेरे को भी क्या मालूम, पर मुझे बराबर एक दृष्टि है, मैं समझ ही पाता हूं। तो मैंने पूछा 10 से 12 करोड़ तुमने IRC करके शायद कमाए होंगे। उसने कहा सब 12 नहीं 10 करोड़ कमाए। ने तुम्हारा खाना खिलाया, रहने की व्यवस्था की, कार्यक्रम हुए, पेपर तैयार हुए, ऐसा नहीं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा ठंडा। तो उल्टा IRC यहां ऑर्गेनाइज करके उनने 10 करोड़ का प्रॉफिट भी कमाया। कुछ बातें जरूर सीखिए और ऐसा ही हर IRC में थोड़ा सा अप्रोच रखिए। ऐसा करते करके 200-400 करोड़ जमा हो जाएंगे और 200-400 करोड़ जमा हो जाएंगे तो IRC का प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन देश में बहुत अच्छी बन जाएगी। जगह हमारे पास तैयार है। वो जोशी थे, तब से मैं कह रहा हूं कि मैं पैसे भी देता हूं, मदद भी करता हूं। हाफ टाइम काम नहीं होता, कोई भी काम डेडिकेशन से होता है। कभी तो भी आए, 4 दिन आए, कागज में रिपोर्ट छपे, या ऐसा हाफ हार्टेडली काम नहीं होता। काम करना है, प्रोफेशनली करिए, फुल टाइम लोगों को अपॉइंट करिए। जो रिटायर्ड हुए उसको लीजिए, जो IIT के प्रोफेसर रिटायर्ड हुए उनको लीजिए, रिसर्च लेबोरेटरी तैयार करिए और वर्ल्ड के स्टैंडर्ड की सब काम को करने के लिए आगे बढ़िए। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर, आपके इस प्रेरणादायी शब्दों के लिए, अमूल्य मार्गदर्शन के लिए। भारत के सभी विश्वकर्मा हमारे इंजीनियर्स का उत्साहवर्धन आपने किया और सटीक उदाहरण से उपस्थित सभी का पथ प्रदर्शित किया। गुजरात को इस विशेष भेंट देने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम के अंतिम चरण तक हम पहुंच गए हैं। मैं सादर अनुरोध करती हूं IRC के उपाध्यक्ष प्रोफेसर श्री मनोरंजन परिदा जी को आभार प्रस्ताव के लिए पधारें। आप सभी को नमस्कार। It's my privilege to propose vote of thanks for this inaugural function. Honorable Union Minister for Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari ji, Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel ji, Chief Secretary, Government of Gujarat, Shri Rajkumar ji, President IRC, Shri SP Vasava ji, Secretary General IRC, Shri SK Nirmal ji, Secretary R&B Department, Shri AK Patel ji, Past President IRC, Shri C.P. Joshi ji, Vice Presidents of IRC, Shri R.K. Mehra ji, Shri Arvind Kumar Jain ji, Shri Pranav Kapoor ji, and local organizing secretary Shri J. Gandhi ji, other dignitaries on the dais, chairman, co-chairman of technical committees of IRC, distinguished delegates, awardees and invitees, friends from media and press, ladies and gentlemen. Today we are feeling blessed and honored to have Honorable Union Minister for Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari ji with us, who has spared time from his extremely busy schedule and for giving guidance to all of us to take road sector and IRC towards greater heights. Sir, we assure you that with your good wishes during the coming time, the contributions of IRC to the road sector